Good morning, everyone. I hope you all are healthy and safe. Student, in the previous video, we have started chapter number 6 political parties, and I have discussed the functions and the challenges of political parties with you. The political parties who are making the law, who are running the government, and doing the public welfare, they have some limitation also. They always promote nepotism. It means they always give chance to their relatives, friends, and the political parties are not ready to attend the organizational meetings and supporting the criminals sometime. So I hope these two topics, the functions and the challenges to political parties, are is clear to you. Student, in this video we will discuss the another topic, national parties, and we have seven national parties. What are national parties? And the most important, because the ruling party is BJP, so we will discuss the ideology of BJP and the history of BJP, that how BJP established and what changes came with the passage of time. So let's start. First of all, national parties, as I told you, that a party that secures at least 6% of the total votes in the Lok Sabha election or assembly election in four states and win at least four seats in the Lok Sabha आर द नेशनल पार्टी. एक ऐसी पार्टी जो एटलीस्ट 6% टोटल वोट जो है सिक्योर कर सकती है अगर लोकसभा इलेक्शन में या असेंबली में इन फोर स्टेट्स. एंड स्टूडेंट, एटलीस्ट उनको जीतना भी कितना ज़रूरी है, फोर सीट्स. तो वो है नेशनल पार्टीज़. एंड इन द ऑनलाइन क्लास आई टोल्ड यू दैट द सेवेंथ नेशनल पार्टी इज़ अ तृणमूल कांग्रेस. इन योर बुक आई थिंक 6 पार्टीज़ आर गिवन. सो ये पुरानी बुक्स हैं, और जो सेवन्थ ऐड हुई है वो है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जिसकी आइडियोलॉजी भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी. बच्चे भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं पहले, कि कब इस्टेब्लिश हुई या कैसे इस्टेब्लिश हुई, किसके सपोर्ट से हुई. सो बच्चे बीजेपी, अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं, BJP's origin lies in the Bharatiya Jansangh formed in 1951 by Shyam Prasad Mukherjee. Here you can see the portrait of Shyam Prasad Mukherjee, the founder of Bharatiya Jansangh. एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना था भारतीय जनसंघ, और 1951 में वहाँ से बीजेपी की शुरुआत हुई थी. एंड आफ्टर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी in 1977, the Jansangh, it merged with the several other parties and formed their own party, which was जनता पार्टी. एंड बच्चे, जनता पार्टी ने हराया था कांग्रेस पार्टी को in 1977 इन जनरल इलेक्शन इन इलेक्शंस. और बच्चे, अब जो मैंने मार्क किया हुआ है स्टेट ऑफ इमरजेंसी में एंड जनरल इलेक्शन में, दोनों का मीनिंग आपको समझाना बहुत ज़रूरी है. स्टेट इमरजेंसी हुई थी in India. It refers to, I can say, 21 months period from 1975 to 1977, when Prime Minister Indira Gandhi, she had a state of emergency declared across the country. Officially तो उस टाइम ये इशू हुई थी by Ali Ahmed, by Fakhruddin Ali Ahmed, who was the president that time, under article 352 of the constitution, because of the internal disturbance, because of the prevailing internal disturbance. और बच्चे, ये जो emergency थी, it was in effect from 25th of June 1975 until its withdrawal on 21st of March 1977. तो ऑलमोस्ट 21 मंथ्स की इमरजेंसी थी, क्योंकि इतने ज़्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गए थे. और आपको पता है बच्चे, द ऑर्डर इट बिस्टोर्ड अपॉन द PM द अथॉरिटी टू रूल बाय डिक्री. इवन जितने भी इलेक्शंस थे सस्पेंड किए गए, सिविल लिबर्टीज टू बी कर्ब, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ऑफ द इंदिरा गांधी, दे वर इम्प्रिजन्ड, एंड even the press, media, it's all were censored. It means, I can say, the state of emergency is one of the most
कंट्रोवर्शियल पीरियड ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियाज़ हिस्ट्री। तो बच्चे 1977 में जब ये इमरजेंसी लागू हुई थी, स्टेट इमरजेंसी, दैट टाइम ये जो जनसंघ था जो बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी 1951 बनाया गया था, फॉर्म किया गया था, इट मर्ज एंड विद अदर पार्टी, उनको अदर पार्टीज़ का सपोर्ट मिलने लगा और यहाँ पे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जनता पार्टी, और जनता पार्टी के आते ही जो कांग्रेस पार्टी थी उसको डिफीट मिली जनरल इलेक्शन में, या ये कह लो लोकसभा इलेक्शन में। देन आफ्टर 3 इयर्स, इसके 3 साल के बाद, ये 3 साल तक रूल चला, एंड देन जनता पार्टी डिसॉल्व हो गई, एंड फाइनली इन 1980 विद द मेंबर ऑफ जनसंघ उन्होंने क्या बनाया, बीजेपी बनाया। हेयर यू कैन सी 6 अप्रैल 1980 को ये जो है बीजेपी पार्टी बनी है। देन स्टूडेंट, winning only 2 seats in 1984 general election, it grew its strength on the back of Ram Janmabhoomi movement. जब बचे 1980 में 6 अप्रैल को जब बीजेपी बनी थी, तो उस टाइम ये बहुत नवी पार्टी थी, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उसे सिर्फ 2 सीट्स मिली थी। स्टिल ये जो पार्टी है लाइमलाइट में आई थी, स्ट्रेंथ हो गई थी, मजबूत हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉपिक राम जन्मभूमि मूवमेंट। आपको पता है राम जन्मभूमि क्या था, जो अभी मैटर सॉल्व हुआ है अयोध्या में। सो उस टाइम पे उन्होंने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। देन बच्चे इसके बाद 1996 1998 में बहुत से ट्विस्ट आए। हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप अटल बिहारी वाजपेयी को देख रहे होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी सॉरी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी लेफ्ट, लाल कृष्ण अडवाणी द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अंडर वाजपेयी, वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट। इट मीन्स जो लेफ्ट में है वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, हु वाज द फर्स्ट पीएम and from BJP sorry, and the लाल कृष्ण अडवाणी at the right, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चुने गए थे अंडर अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन बच्चे ट्विस्ट क्या हुआ था, मैंने आपको बोला 1996 में फॉर 13 days, देन 1998 में बीजेपी प्लस एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्म अ गवर्नमेंट लास्टेड फॉर अ ईयर। सबसे पहले जो सरकार बनी थी 1996 में बच्चे, वो सिर्फ 13 दिन की सरकार बनी थी। 13 दिन की सरकार मतलब उनको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, तो 13 दिन के अंदर अंदर वो सरकार ख़त्म हो गई। देन 1998 में बीजेपी वालों को, भारतीय जनता पार्टी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का सपोर्ट मिला, प्लस का मतलब है कॉलिशन, वहाँ से उनको सपोर्ट मिलना, उनकी सीटें भी मर्ज हुई बीजेपी में। और फिर बच्चे ये सरकार 1 साल के लिए चली, एंड फाइनली जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए की सीट्स को फिर से कोलाइड किया, एंड अगेन हेडेड बाय बीजेपी लास्टेड फॉर अ फुल टर्म इन ऑफिस। मतलब पहली सरकार 13 दिन की, फिर दूसरी बार बनी 1 साल के लिए, एंड फाइनली जब हुए फ्रेश इलेक्शंस हुए, उसके बाद एनडीए ने फिर से सपोर्ट किया किसे, बीजेपी को, और फुल टर्म का मतलब है पूरे 5 साल के लिए इनकी सरकार बनी, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी थे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जो बीजेपी की तरफ से। वैसे तो हमें पता है बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे फर्स्ट पीएम, मैं उनकी बात नहीं करी। जो बीजेपी पार्टी है जो 1980 में फॉर्म हुई थी, उसके बाद उनको कब मौका मिला कि वो भी अपना जो एक लोकसभा का मेंबर है वो प्राइम मिनिस्टर बना सके, वो हुआ था एट द टाइम ऑफ 1998. Then NDA again headed by in 2004 NDA suffered an unexpected defeat and BJP was the principal opposition party. 2004 में कांग्रेस ने रूल करना स्टार्ट किया, 2004 से 2014 तक, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे एनडीए बहुत बुरी तरह से हारा था, मतलब उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था कि वो कॉलिशन करने के बावजूद भी बीजेपी से वो रूलिंग पार्टी नहीं बन पा रहे थे, एंड बीजेपी वॉज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। कांग्रेस ने रूल किया फ्रॉम 2004 टू 2014, वी नो ऑल, एंड इस वजह से जो बीजेपी है वो ऑपोजिशन पार्टी बन गई। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे यहाँ एक टेबल देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी एब्रीवेशन बीजेपी, वी नो, प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा, देन जनरल सेक्रेटरी, देन पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन लोकसभा लीडर नरेंद्र मोदी, राज्यसभा लीडर गहलोत, फाउंडर एज वी नो कि
1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्म हुई है पार्टी वो कब हुई है? अंडर द अटल बिहारी वाजपेयी, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पीएम फ्रॉम बीजेपी, स्प्लिट फ्रॉम जनता पार्टी। हमें पता है जनता पार्टी से हम अलग हो गए थे बीजेपी जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी हुई। देन प्रोसीडेड बाय भारतीय जनसंघ, देन स्टूडेंट विंग, आइडियोलॉजी एंड कलर एंड सिंबल सैफरन एंड लोटस। अब बच्चे फिर से यहाँ आते हैं। देन द फर्स्ट इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, द आइडियोलॉजी, जो आपकी बुक्स में गिवन है। क्या है इसकी आइडियोलॉजी? बच्चे फर्स्ट पॉइंट है कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट in its conception of the Indian nationhood and politics. Culture nationalism, it is a form of nationalism in which the nation is defined by the shared culture. It means it is an intermediate position between the ethnic nationalism and civil nationalism. It means it focus on a national identity shaped by culture, shaped by tradition, but not on the concept of common ancestor or race. It means बच्चे हिंदुत्व का मतलब होता है a quality of being a Hindu. Those who considered India to be a land in which their ancestor lived as well as the land in which their religion originated. तो ये जो बीजेपी वाले हैं ये कल्चर नेशनलिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं। कल्चर नेशनलिज्म हिंदुत्व, हिंदू की भावना होना, एक ऐसा नेशनलिज्म, एक इज अ फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म जहाँ नेशन को डिफाइन किया है बाय द शेयर्ड कल्चर, संस्कृति को, सभ्यता को अपना मेंटेन करना बीजेपी की आइडियोलॉजी है। देन द पार्टी वांट्स फुल टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, जो अभी इन्होंने कर भी दिखाया है। अगर मैं बात करूँ तो बच्चे जम्मू एंड कश्मीर जिसको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था अब वो ख़त्म हो गया, और इन्होंने शुरू से ही ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि फुल टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर को अलग ट्रीट किया जाता था कि हम वहाँ लैंड नहीं ले सकते। सो ये सब चीज़ें उन्होंने स्टार्टिंग से ही कहा था कि पूरा इंडिया जो है एक होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला है वो ख़त्म होना चाहिए। देन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन सोसाइटी और अ कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड बैन ऑन द रिलीजियस कन्वर्जन्स। अब इन्होंने कहा बच्चे अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा, सिविल कोड होना चाहिए सब लोगों के लिए रिलीजन बेस पे, ठीक है। रिलीजन बेस पे मतलब कोई भी रिलीजन बेस पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबको एक समान ट्रीट करना चाहिए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और जो रिलीजन कन्वर्जन्स हो रहे हैं, मतलब जो जल्दी जल्दी हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से क्रिश्चियनिटी, ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं उन पे भी बैन होना चाहिए। इन्होंने बच्चे देखो है तो ये बच्चे राइट विंग की, ठीक है ना, पार्टी। अभी मैं बताती हूँ बीजेपी इज़ अ राइट विंग पार्टी, और बच्चे मेनली राइट विंग के जो पार्टीज़ होते हैं वो ये कहते हैं कि जो रिलीजन है और गवर्नमेंट है ये एक साथ ही है, मतलब गवर्नमेंट जो है रिलीजन को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में करना चाहती है। तो बच्चे यहाँ पे उन्होंने लेकिन कहा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए या कोई इशू नहीं होना चाहिए कंट्री में। देन as of 2019 we all know BJP is the country's largest political party in the term of representation in the national parliament, and बच्चे BJP is a right wing party। राइट विंग पार्टी के बारे में भी हम बात करते हैं। पहले यहाँ सिंबल पढ़ ले, लोटस सिंबल है एंड विद द स्लोगन द पार्टी विद द डिफरेंस। अब बच्चे बीजेपी इज़ अ राइट विंग पार्टी। अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ, ना वो राइट विंग वाले हैं ना वो लेफ्ट विंग वाले हैं। तो अब आपके पास एक टॉपिक आ गया कि पॉलिटिक्स के अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको लेफ्ट विंग एंड राइट विंग पार्टीज पता होना चाहिए। बच्चे ये जो टर्म आई है ना लेफ्ट विंग पार्टी एंड राइट विंग पार्टी, ये एक्चुअल कहाँ से आई है? ये फ्रांस से आई है। फ्रांस में हमने चैप्टर पढ़ा था कि वो जो है सोसाइटी बेस्ड था, क्लर्जीज, नोबल्स एंड द थर्ड क्लास। तो बच्चे जब फ्रांस का पार्लियामेंट हुआ था तो वहाँ पे उस पार्लियामेंट में जब ये डिस्कशन चल रही थी तो एक सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे होता था कि एक तरफ जो है वो रिच लोग रहते थे, ठीक है, रिच लोग बैठते थे, और एक तरफ थे जो पुअर लोग बैठते थे। और हमें पता है कि जो रिच थे वो कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव मतलब वो चेंज नहीं चाहते थे, वो यही चाहते थे कि मोनार्की है फ्रांस में, मोनार्की ही रहे।
एंड इट मीन्स वो कहीं ना कहीं किंग लुई के फेवर में थे, कंजर्वेटिव्स थे, एग्जिस्टिंग सिस्टम जैसा चलता आ रहा है उसको सपोर्ट करते थे। और बच्चे जो पुअर लोग थे, ठीक है, पुअर, वो चेंज चाहते थे, रेवोल्यूशन चाहते थे, उन्हें रिफॉर्मिस्ट भी बोला गया, रेवोल्यूशनिस्ट भी बोला गया। तो बच्चे जो पुअर हैं, मतलब जो एक साइड बैठते थे और चाहते थे कि मोनार्की ख़त्म हो, कॉन्स्टिट्यूशन आए और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चले, उनको लेफ्ट विंग के पीपल बोला गया। और जो अमीर लोग थे, जो रिच लोग थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो चेंज नहीं चाहते थे, उन्हें राइट विंग के लोग माना गया। अब बच्चे यहीं से डेफिनेशन निकलती है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में आपको पता है 2 पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेट्स क्या हैं, लेफ्ट विंग के लोग हैं, और जो रिपब्लिकन्स हैं वो राइट विंग के पीपल हैं, मतलब वो चेंज नहीं चाहते हैं ज़्यादा। और बच्चे लेफ्ट विंग के मतलब लोगों की अगर मैं डेफिनेशन बात करूँ, लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तो बच्चे वो ये चाहते हैं कि जो रिलीजन है और जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग होना चाहिए। गवर्नमेंट को अलग रन होने दो और रिलीजन को अलग रखो। ये जो पॉलिटिशियंस जो रिलीजन बेस पे अपनी आइडियोलॉजी कर रहे हैं वो गलत है। देन डेथ पेनल्टी के खिलाफ थे लेफ्ट विंग के लोग, टैक्सेस के फेवर में थे। उनको लगता था कि जो रिच पर्सनस है ना उन पे टैक्स लगाओ, जो पुअर हैं या जो मिडिल क्लास है उनको छोड़ दो, बल्कि रिच को लगाओ क्योंकि रिच की इनकम ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, मतलब लेफ्ट विंग पार्टीज़ जो हैं, वो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। इसके अगेंस्ट अगर मैं राइट विंग की बात करूं, तो राइट विंग जस्ट इसके अपोजिट है। वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रिलीजन एंड गवर्नमेंट को अलग रखो, लेकिन जो राइट विंग के पीपल होते हैं या पार्टीज़ होती हैं, उनका ये मानना है कि रिलीजन और गवर्नमेंट मिक्स होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जो है अगर अपनी आइडियोलॉजी बनाना चाहती है, लोगों को इम्प्रेस करना चाहती है, तो वो रिलीजन बीच में ला सकती है। टैक्सेस को ये कम लगाते हैं, मतलब वहाँ पे था रिच पे टैक्स लगाओ, लेकिन यहाँ पे जो आइडियोलॉजी है राइट विंग के लोगों की, वो कहते हैं टैक्सेस कम करो, क्योंकि वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टैक्सेस अगर हम कम करेंगे तो ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो पाएगी, और कंट्री के कल्चर को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा जो है इनका फोकस होता है। शायद इस वजह से ही इनको कंजर्वेटिव्स बोले गए हैं। कंजर्वेटिव्स का मतलब है एग्जिस्टिंग सिस्टम को जैसे चलता आ रहा है वैसे चलते रहें। तो बच्चे जो बीजेपी है, इट इज़ अ राइट विंग पार्टी। राइट विंग का मतलब है यहाँ आप देख सकते हैं द राइट विंग पॉलिटिक्स, इट रिप्रेजेंट द व्यू दैट सर्टेन सोशल ऑर्डर्स एंड हायरार्कीज आर नेचुरल, इनएविटेबल, नॉर्मल, डिज़ायरेबल। इट मीन्स ये जो चलता आ रहा है हमारे में एक हायरार्की लेवल, टॉप क्लास, मिडिल क्लास, देन लोअर क्लास, ये नेचुरल है, ठीक है, नॉर्मल है, डिज़ायरेबल है, सपोर्टिंग दिस पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ ट्रेडिशन। इन्होंने ये कहा कि ये जो कैपिटलिज्म या ये हायरार्की लेवल है ये बिल्कुल नॉर्मल है, नेचर की तरफ से है, इस वजह से बच्चे ये कंटिन्यू होना चाहिए। दैट इज़ वाई इन्हें हम कह रहे हैं कंजर्वेटिव्स और द रिएक्शनरी सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। और जो बीजेपी है वो हमारी राइट विंग पार्टी है। जब हम आईएनसी पढ़ेंगे तो आईएनसी में हम पढ़ेंगे दैट इट इज़ नीदर द राइटिस्ट और द नीदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट पार्टी। ना तो वो राइट वाले हैं ना वो लेफ्ट विंग वाले हैं, उनकी अपनी अलग अप्रोच है। लेकिन जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं क्या है, राइट विंग की पार्टी है। देन यू कैन सी हियर द सीट्स इन द लोकसभा 303 आउट ऑफ 543, राज्यसभा में 86, स्टेट असेंबली में 1323 एंड seats in the state legislative councils is 91 out of 426. सो स्टूडेंट, आई होप थोड़ा सा आपको बीजेपी के बारे में पता लग गया। अब अगर बच्चे मैं फाइनल कंक्लूजन आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलूँ, founded in 1980, formed by Shyam Prasad Mukherjee in 1951, wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from Indian ancient culture and values by Deen Dayal Upadhyay's idea of integral humanism and अंत्योदय। मेनली कल्चर को मेंटेन करते हैं, ये हिंदुत्व पे बहुत बिलीव करते हैं, कल्चर नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। देन इट वॉज अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ वेस्ट, टू द अर्बन एरिया। धीरे धीरे पार्टी एक्सपेंड हुई साउथ में, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, रूरल एरियाज़ में। एंड बच्चे 2014 लोकसभा इलेक्शन में तो हमें पता है मेजॉरिटी के साथ ये जीती है विद 282 मेंबर्स इन 2014 लोकसभा इलेक्शंस। So I hope student this topic BJP, only one national party I discussed with you today, is clear to you. If you have student any doubt regarding this, you can call me or WhatsApp me. Thank you students.